Everyone is ready? Okay, so good evening, everyone. We will start the class. So I will start with the revision, right? So we will see what all topics we have studied in this chapter. Hai na? So when we talk, good evening, Tanushree, when you talk about this chapter, force and pressure, what are the topics that we have covered? Tell me. So we discussed what is force, yes or no? We discussed what is force, right, everyone? I hope all of us know what is force. Force is generally push or pull. Yes or no? Push or pull. Okay. Then we talked about effect of forces. Can anyone tell me, Shreya, tell me what are the effect of forces? Tell me, Shreya. Sir, it will make the object to move. Yes, so it will move the object, it will make any object which is in rest to move. Second, tell me. It will make the object which is in motion to come to rest. Third, change in direction. Change in direction, right? And fourth, Change the speed. change in, correct, right? Ananya. Change in shape, yes, है ना? Speed. So 4 points. Change in speed. Change in speed तो वही हो गया ना? Change in speed, change in direction, change in size, change in shape and size basically, right? Okay. Now when you talk about different type of forces, so Kishore, tell me what are the different type of forces, Kishore? Yes, sir. Sir, contact force, non-contact force. Very good, right? So on the basis of contact, there are contact and non-contact force. Okay. Vihan, on the basis of strength, how many types of force are there? Vihan, can you hear me? On the basis of strength, how many force are there? Tell me. Jia, can you tell me? Jia, can you tell me on the basis of strength? Aditya, you can message also, right? You can message also. On the basis of strength, there are two types, na? If you remember, on the basis of strength, right? On the basis of strength, they are basically weak and strong. Yes or no? Do you remember? Weak and strong. है ना? Yes or no? Remember? अभी याद आया basic था ना? Okay. Right. Now, contact and non-contact. When you talk about contact and non-contact, right? So, can you give two examples of contact force? Very good, Jia. Gravitational force is an example of weak force or strong force. It is weak force, right? है ना? Okay. Muscular friction. Okay. Yes. Tension. All are contact. Yes. Correct, Shravya. Right. Now, again, when you talk about gravity, think about it. When you talk about gravity, it depends, right? It depends. कोई भी जो भी force है ना हमेशा comparable होता है. Yes or no, right? If it is weak or strong, it is compared to what? For example, when you talk about gravity and electrostatic force, which is strong one, which is weak one? Tell me. Gravity and electrostatic force, electric force. ठीक है? तो electric force is a strong one, है ना? And gravitational force will be more. Yes. Okay. So always comparison. ठीक है? Right? Okay. Now, when you talk about contact, non-contact, हम लोगों ने contact बहुत से examples देखे. क्या देखा? Tell me. Tension देखा. Spring force, muscular force, frictional tension, normal spring, drag. Normal force. Correct. है ना? Correct. Spring, correct. Right? Normal also, है ना? Okay. Now, say Newton's law of motion. We have discussed Newton's law of motion. So we will see, I will ask Newton's law of motion. Then what is friction and then what is the direction of friction? Yes or no? 3 laws, correct. Right? So I guess यहाँ तक तो सबको याद होगा. यहाँ तक में रिवीजन करने की जरूरत नहीं है. हाँ या ना? Tell me. Right? Okay, Kishore, don't worry. I'll revise also, na? Don't worry. So the first is Newton's law of motion. So हमने videos भेजे थे, है ना? I will send videos again, right? If you don't remember, it's fine. So first is Newton's law of motion. First law is law of inertia.
Now, when you talk about law of inertia, okay, right? When you talk about law of inertia, what does the meaning? What does this means, right? What is the meaning of law of inertia? So think about it, right? So can anyone tell me? Bindu, can you tell me what is this law of inertia? Sir, can I? Wait. Or Yukti, can you tell me, Yukti? Yukti, law of inertia? Yes or no? Just let me know. Sanvi? Shravya? Shravya, can you say Shravya? Sir, I don't know. You don't know. You forgot. Sir, Okay, Ananya. Yes, Ananya. We had not been taught, sir. An object resists the change in its state. Come again, Ananya. An object resists the change in its state. Correct. Very good. Right, Hannah? Right? Okay. So I said that when you talk about law of inertia, it says any object, simple word mein, hai na, resist the change in its state. The change in its state. Okay. Right. Okay. Nobody from class 8. Mona's fault. I forgot, right? That few classes. Na, I thought कि तुमको आता होगा. तो मैंने ये सिर्फ homeschool 1 में पढ़ाया है. Okay. So again, मैं पढ़ा रहा हूँ फिर से. ठीक है. So think about it, right? Everyone, think about it. Okay. Think about it. So, for example, how many of you? I'll just explain again. है ना? Okay. So when you talk about motion, think about it. I hope all of us, है ना, have traveled in bus or car or bike. Yes or no? Tell me. All Yes, of us, sir. right? So think about it. When sudden brake is applied, what happens? Tell me. Sudden brake is applied. What happens? Think about it. Sir, we move forward. We move forward. Yes or no? Tell me. Hi, Anna. Yes. Right? Makes sense. This is something that we observe. Right? This is something that we observe. Everyone observe this. Okay. Now, suppose how many of you have how many of you sat behind your parents on bike? Tell me. Yes, Think sir. about it. And if the bike suddenly accelerates, don't you think that we kind of fall back? Yes or no? Yes, sir. We Yes, go back. Go back. Anna, right? Yes. And exactly, we go back. And same, right? When we talk about turning, when car suddenly turns, we kind of, tell me, shift in the opposite direction. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? So have you ever thought why this happens? Sir, because of Sir, because the sudden things happen. Tell me, why? Why this shift in a position? because when we are moving straight, sir, our body will be Exactly, because whenever we talk when about it these takes things, a turn, then we will also turn. yes. So for example, suppose if I'm sitting in a car, right? And if car is not moving, so my state is what? Rest or motion? Tell me. My Rest. state will be rest or motion. Rest. Right. Suppose I'm talking about a car. Okay? Car. And it is in rest, it is not moving. I'm sitting over here. So my state is rest. Okay. But suppose it starts moving suddenly. Right? So obviously my state will change. Yes or no? Yes. But we kind of don't want, right, our state to change. है ना? So सोचो तुम आगे जाना चाहोगे, but resist नहीं करना क्या होगा? तुम kind of पीछे की ओर move करोगे. Yes or no? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. Right? In the same way, exactly, right? Sudden motion, acceleration, force है ना? Force की बात कर रहे हैं ना? है कि नहीं? Force की बात कर रहे हैं. तो force मतलब acceleration. Whenever there is acceleration, then only it happens. है कि नहीं? Constant velocity से move करता है. कुछ सोचो, कभी भी सोचो, constant velocity से move कर रहा है, तब हम feel करते हैं क्या ऐसा?
No, sir. Sir, नहीं only ना? when there's a sudden change. Exactly. Only when there's a sudden change. Only when there's acceleration. मतलब पापा गाड़ी चला रहे आगे अचानक कुत्ता आ गया. क्या होता है? Sir, हुआ sudden है कि नहीं break. कभी? पापा ब्रेक दबाते हैं तो suddenly हम पीछे चला जाते हैं. Right? अचानक ब्रेक मारते हैं हम लोग आगे की ओर मूव कर जाते हैं. सर हम Yes or लोग no? कुत्ते के ऊपर बैठ जाएंगे सर कार से निकल के. Okay. Aditya, I'll mute you if right. Don't give any irrelevant examples. ठीक है? हमारे पास टाइम कम है हम लोग यूटिलाइज करेंगे ज़्यादा आज. So I hope all of you understood first law. Yes or no? Yes, Raise your sir. hand. All of you understood first law. Easy है ना? Yes, sir. समझना है बस. Right? हाँ, I'll send the easy videos to you guys also. ठीक है? Don't worry. है ना? क्लास के बाद. So I can write like this. I can write like this. An object is in motion. An object in motion will continue to be in motion. Will continue to be in motion and an object in rest will continue to be in rest right until and unless बताओ external forces applied. Yes or External no? force is applied. Yes. सर 2 मिनट रुको सर नोट कर लूं. Okay, got it? Yes, sir. सबको समझ में आ गया फर्स्ट लॉ? हाँ सर. नहीं Yes, नहीं sir. आगे नहीं बताओ ना. राइट मैं बता रहा हूँ एक एक लॉ बताऊंगा. ठीक है? Vihan, I will send this, but yes, you should write this in your notebook. ठीक है? After the class. ठीक है? सर आप ना नोट्स का पीडीएफ नहीं भेजते सर क्लास के बाद. पहले आप भेजते थे तो इजी हाँ, होता था. because मुझे पता चला कि बहुत लोग नोट्स बनाते ही नहीं है. ठीक है? That's the Sir, reason, हम बनाते हैं sir. right? सर So- बनाते हैं. Okay, so you guys just keep writing this ना. मैं नोट्स भेजता After हूँ. we write along with. मैं नोट्स भेजता हूँ कंप्लीट करने के लिए, बट तुम लोग बनाओगे नहीं, दिक्कत है ना. Then Newton's second law of motion. सर Now- 2 मिनट से वापस वो वाला दिखाओ ना सर लास्ट में. Okay, right. So Newton's first law सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? हाथ उठा लो. हाँ या ना? यस Yes, sir. Yes, sir. रागिनी, पूर्वी, युक्ति, संध्या, वृंदा, तनुश्री, Yes, sir. सिद्धार्थ, यस या निकेतन. हाँ सर समझ में आ गया. हाँ sir, I रोज में. Okay, Shreya is here. Okay, right, correct. Now, when you talk about Newton's second law is actually the definition, है ना, of force. It is the actual definition of force. So before talking about Newton's second law, we will talk about a term called as momentum. Okay, so how many of you know momentum? Can you tell me how many of you remember momentum? सर याद नहीं है सर मुझे तो नहीं याद याद है? नहीं So है this सर is मुझे याद नहीं. physical quantity. This is a physical quantity, right? This is a physical quantity which tells us. Tell me. It is Momentum is equals to mass into change in velocity. yes, mass into velocity, right? Mass into velocity, correct, right? हम school one में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? So yes, so momentum is physical. Momentum is a physical quantity which tells us, है ना? Where is eraser? Okay. So, right. Yes. So momentum is what? A physical quantity. Momentum is a physical quantity which is equal to product of mass and velocity, right? Product of mass and velocity. Now think about it. If it is mass and velocity, है ना? Okay. So what do you think? What is the unit? What would be the unit of this momentum? What is the unit of mass, guys? kg. Kg, correct. Awesome. Kg. Kilograms. And what is the momentum of velocity? SI unit. SI is what is it? Meter Meter per second. per second. by Meter per second. second. Na? MS. Because velocity is, yes, velocity is displacement by time. Yeah, sir. It is Speed. meter per second. So the answer is kg meter per second, or you can write like this: kg meter per second. हाँ या ना? Tell me yes or no. So it is just yes, Akshit. I'm saying momentum is a physical quantity. Momentum is a physical quantity which is equal to
product of mass and velocity. ठीक है? Now think about it. अब तुम समझना चाहो तो कैसे समझ सकते हो? Suppose you have a 5 kg. Think about it. Suppose, right, you have 5 kg object and you have a 10 kg object. Okay, you have 5 kg object, you have 10 kg object, right? If the momentum is same, then which of the object will have more velocity? So can you repeat your question? My question is, if I'm having 5 kg object A is 5 kg, object B is 10 kg. Okay, so object A velocity is v1, object B velocity is v2. So my question is, if momentum is same, then out of v1 and v2, which is greater? Tell me, which is greater? Sir, is it V1. Sir, V1. We know now, if momentum is same, then sir, m1 v1 should be equal to m2 v2. Ayana, Yeah, sir. right? Yes or no? So if m1 here, m1 by m2 is equal to what? v2 by v1. Yes, sir. So what is m1? m1 का value कितना दिया हुआ है? What is the value of m1? Sir, 5 kg. 5 kg. And what is the value of m2? 10 kg. 10 kg. 10 This is kg. equal to v2 by v1. हाँ या ना? Yeah, sir. 1 by 2. So बताओ, v2 बड़ा है कि v1 बड़ा है? Sir, V1. v1 is greater than 1. v2. Makes sense? हाँ या Yeah, ना? sir. Makes sense. Yes, sir. Right? Because खुद सोचो ना, मान लो एक छोटा पत्थर है ना, मोमेंटम अगर सेम है तो जिसका वेट कम होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए. यस और नो? और Yeah, जिसका sir. मास ज्यादा है उसका वेलोसिटी कम होना चाहिए. राइट? यस और नो? Yes, sir. ओके, नाउ तो ये तो हो गया एक डेफिनेशन, बट व्हेन यू टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ फोर्स तब तुम समझ आया कि भाई मोमेंटम का यूज कहाँ है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट सेकंड लॉ, ओके, ध्यान देना सबको. सेकंड लॉ जब हम लोग देखते हैं ना, तो जनरली हम लोग पढ़ते हैं, अगर बहुत डीप में जाएंगे तो जनरली पढ़ते हैं क्या? इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, राइट? Okay, mass into acceleration. Now when you talk about mass into acceleration, it is not okay, Brinda, I'll repeat, don't worry, I'll repeat, right? So I'm completely मैं फिर से बोलूंगा. But this is not the second law actually. Second law is, now think about it. Suppose I'm having a box like this. Think about it, right? Now someone is pushing from this side, someone is pushing this from this side. Okay, yes Jia, I'll show. इसको एक बार खत्म होने दो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? Suppose you are pushing this from this side and the force applied is 15 Newton. Force का फॉर्मूला, right? Force का यूनिट न्यूटन में होता है, हाँ या ना? 15 Yes, sir. न्यूटन. And इस साइड से कोई और अप्लाई कर रहा है 10 न्यूटन. बताओ what is the net force? F net क्या होगा? Sir, 5 Newton. 5 Newton. So 5 Newton. Sir, 5 और Newton. Newton. Easy है ना? Very good. 15 minus 5, very good. So 15 minus 10. Correct. 10. 5 Newton. Any issues in this? Tell me. Any issues in No, this? sir. No issues. No issues, sir. Okay. Now, अगर मैं बोलूं कि this is positive direction, so this object will move in which direction? Sir, Direction, positive. negative direction. Positive. 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 Yes or no? Yeah, sir. Okay. So I can say that, okay, sir, whenever we talk about the acceleration, whenever we talk about the movement, I have to check net force, yes or no? Yes. Ayana. So can I say, sir, Yes. F net should be equal to mass of the object and its acceleration. Ayana. Excuse me, sir. Yes. Sir, what you wrote that sir FNCT? F net, N-E-T, F net. net. Net मतलब Net total, force. na? Net Net is force. total force. Sir, I thought it was C. No, wait. Right? Okay. F net. Okay. Any issues in this? No, No, sir. sir. No issues. No, right? Yes.
So can I say that, okay, sir, when you talk about acceleration, we have to consider total force, net force. Yes or no? Yes. Okay. Now, let us see the previous slide. Okay, let us see the previous slide. Okay. Now think about it. When you talk about the previous slide, okay. Now, when you see this previous slide, okay. So here, what was momentum? What is momentum? That mass into velocity. Mass into velocity. Mass into velocity. Okay, correct. सबको समझ में आ रहा है ना? है कि नहीं? Right? Yes, sir. Now, when you talk about this, can I write like this, sir? F net is equal to what? Mass into acceleration is what? Change in velocity by change in time. हाँ या ना? Or change in velocity by time? So can you repeat Yes, please? sir. Acceleration का formula क्या होता है? What is the formula of acceleration? So initial velocity minus what is this? Sir? Tell me. Final velocity Velocity by time. Yes. So it is final velocity minus the initial velocity by time. Yes or no? Yes or no? Raise your hand. Yes or no? Step by step. So अगर तुम solve करो क्या हो गया? mv minus mu by t. हाँ या ना? Distributive property. Yes, sir. What is mv? बताओ mv क्या है? Momentum है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Final or initial? Final. Final, because v is final velocity, right? Yes. Here it is also represented by p. P से भी represent करते हैं इसको, ठीक है? It is also represented by p. So can I say, sir, it is what? P final minus, what is this? Initial Momentum, P initial by time taken. हाँ या ना? Yes or no? ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Right? So can I say, oh, sir, this is nothing but change in momentum. हाँ या ना? Yes, sir. So F net is basically what? Change in momentum. So I know that delta is the notation for change. हाँ या ना? Delta is the notation for change. Delta is change, which means final minus initial. Final minus initial. Sir, when we minus final, P final and P initial, we get P, sir, or delta P. देखो, change क्या होता है? Final minus initial कर रहे हो तो what you are trying to find? सोचो, Acceleration. कितना momentum change कर रहा है? Yes or no? Tell me, yes or no? Right? Difference is always the change, ना? That is the basic definition, right? Yes, sir. Yes, है sir. ना? Difference का मतलब क्या होता है? Change, कितना change हो रहा है? तुम्हारे पास पहले सुबह में 10 रुपए थे, है ना? शाम में तुम्हारे पास 5 रुपए हो गए, तो कितना change हुआ? Sir, 5 रुपए. 5 रुपए. So basically change is what? Final minus initial. Yes or no? Everyone got this? Jia, Sanvi, you got this? Yukti, you are getting? Tell me, Yukti. Kartikeya? Okay. So can I say, sir, actual definition क्या हो गया? Tell me. Actual definition क्या हो गया? What is actual definition? So F net is equal to delta P by 2 by T. So actual definition, okay, actual definition would be, right? Think about it. Okay, I'll just write actual definition, है ना? Okay, so what is actual definition? Force is actually equal to, yes, very good, Sinchana, correct. So I can say, sir, if you talk about actual definition, I can say that, can you see the click to write, click to add text? दिखता है क्या तुमको? हाँ, sir. दिखता है, sir. Okay, right. So F is equal to what? Tell me. Change in Velocity. ये किसके बैकग्राउंड में म्यूजिक वो आ रहा है, आवाज आ रही है? Sir, Aditya. Aditya, can you just mute? So it is change in momentum by change in time. हाँ या ना? हाँ या ना? Right? Which is actually equal to mass into acceleration. हाँ या ना? So actual definition जो था second law का वो ये होता है
net force, okay, net force acting on any object, any object, right, acting on any object is equal to what? Is equal to what? Tell me, is equal to what? Sir, product of its mass and acceleration. Delta is a Greek alphabet. Delta is a Greek alphabet, Ragini, which means change. ठीक है, right? Okay. Change in time मतलब क्या होता है? श्रावक कितना time spend किया ना? हाँ या ना? So you can just write time or change in time. Same change sense है ना? Yes or no? Think about it, right? क्योंकि initial velocity किसी time पे होगा, final velocity किसी time पे होगा, तो तुम time interval तुम change in time लिखो या just time लिखो, doesn't matter ना? It's actually the time which is taken, yes or no, for the change, right? So net force acting on any object is equal to what? Rate of change of its momentum. Rate of change of its momentum. Right? Or what? Tell me. Same, net forces or equal to product of mass into acceleration. Mass and acceleration. Product of mass and acceleration. Got it? Tell me. हाँ या ना? दोनों समझ में आया? Yes, sir. ओके ना, एक चीज बताओ, अगर ठीक है सर, ये तो थ्योरी हमको समझ में आ गया, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ. व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, है ना, खुद सोचो ना, सोचा है कभी कभी गाड़ी में, राइट, व्हेन यू टॉक अबाउट कार, राइट, व्हेन द कार स्पीड्स अप, टेल मी, मैं पूछ रहा हूँ, कार कब स्पीड अप होता है? सर एक्सेलरेट करने पर. एक्सेलरेटर हुए ना, हाँ या ना? Yes, sir. सो कभी सोचा है कि एक्सेलरेट देने से होता क्या होगा? सर जो चीज जिस स्पीड में काम कर रहा था उसका स्पीड अभी बढ़ जाता है. तो क्या हो रहा है उससे? स्पीड बढ़ता कैसे है? सर उसको जब एनर्जी मिलता है तो. सो ऑब्वियसली व्हेन यू टॉक अबाउट स्पीड बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, यस और नो? स्पीड ऑफ व्हील इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है. सो अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स लग रहा है, हाँ या ना? टेल मी, थिंक अबाउट इट, यस और नो? Yes, sir. है कि नहीं? राइट? सो आई कैन से सर, जहां भी हम फोर्स की बात करेंगे वहां पे हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे. एग्री? यस और नो? जहां पे हम फोर्स की बात Yes, करेंगे वहां पे हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, right? Now when we talk about acceleration, think about it, right? Yes, every force, because force चाहे कोई भी फोर्स हो ना, क्या करवाता है? दिस यहाँ पे कभी लिखा मैंने कि कौन सा फोर्स है? दिस कैन बी एनी फोर्स, राइट? बिकॉज फोर्स मेक्स द ऑब्जेक्ट मूव, कम टू रेस्ट और चेंज डायरेक्शन. क्लियर है? यस और नो? चेंज द मोशन, राइट? Okay, so there will be acceleration. If acceleration is equal to 0, will there be force? Tell me. If No, acceleration is equal to 0, force should be equal to 0. No, yes sir. or no? खुद सोचो ना. Make sense? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Exactly. Now, my question is, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या उस पे फोर्स लग रहा होगा? हाँ सर. नहीं सर. नहीं ना? नो, राइट? नो ना, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0 है. जब एक्सेलरेट करता है तभी एग्जैक्टली, है ना? तुम कुछ, जब पापा तुम्हारी गाड़ी चलाते हैं, जब नॉर्मली मूव कर रहे हैं एक स्पीड से, तो पापा एक्सेलरेटर को छूते भी हैं? नहीं सर. नो ना, आराम से मूव करते रहता है, अनलेस एंड राइट स्पीड चेंज नहीं हो, है कि नहीं? स्पीड चेंज ना करना हो तब तक कुछ नहीं करेंगे. क्लियर है? राइट? ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिक्स, अब यहाँ पे देखते हैं कि ठीक है सर, ये तो हमको फिजिक्स का फोर्स का पहला फॉर्मूला दिखा, F इज इक्वल टू ma, राइट? और अगर मोमेंटम का कंसीडर करेंगे तो दूसरा फॉर्मूला, यस और नो? राइट? बट इसको यूज कैसे करेंगे? दैट शुड बी आवर प्रॉब्लम. इसको यूज कैसे करेंगे? यस और नो? राइट? सर फोर्स करने के लिए. टेल मी, यूज कैसे करेंगे?
सर So- फोर्स नोट करने के लिए So numericals, right? है ना? अब देखो यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में करेंगे. अब कैसे होगा ये न्यूमेरिकल्स में यूज? How we will use this in numericals? Tell me. Think about it. How we will use this in numericals? So पहले सबसे पहला सवाल, सर फॉर्मूला कितना है मेरे पास? We will write how many formulas do we have? So write it down. F is equal to what? MA. That's the first formula. This is equal to what? M into V minus U, है ना? V minus U by T. Yes or no? Tell me. हाँ या ना? Yes, sir. दो formulas हैं हमारे पास. Any issues in this? Any issues in this? We have two No, sir. formulas. So if I talk about variable, how many variables do you have? Tell me. How many variables do you have? I'll just use this red pen. So variable. I'll write variable. सर 7 So first variable is force. F is one variable. Second variable is mass. Sir, third one is acceleration. Yes. Then acceleration. सर देन Then it's final velocity. then Sir, final initial velocity. then Then yes, final velocity. Very good. Initial velocity and time. Initial velocity and time. Exactly. Initial velocity time Time. time and time. Okay. Now सबके पास common sense है कि नहीं? हाँ या ना? आदित्य, पूर्वी, श्राव्या, yes or no? है सर बेस So Yes, sir. now tell me this. Whenever there'll be a problem in physics, right? What we have to do first? Tell me what we have to do first. Vihan? सर जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको लिख दे Awesome, very good, Aditya. You remember, है ना? तो first write down the information. Suppose तुमको बोला गया if mass, और अगर मैं ऐसा सवाल पूछूं, ठीक है? Not mass. If I'll ask this, a car of 100 kg, right? Accelerates at 10 meter per second square, right? है ना? So what force is applied by the engine, okay? And यहाँ पे क्या? Neglect friction. सर नेगलेक्ट फ्रिक्शन मतलब तुमको कैलकुलेशन में फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है? कैलकुलेशन में फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है? सर समझे नहीं है कैलकुलेशन में ना फ्रिक्शन के बारे में नहीं सोचना है, as simple as that. ठीक है सर ठीक है? Now everyone, किशोर, सर म्यूट कर लिया आपने आपको मैंने अपना वो म्यूट कर लिया, सॉरी. किशोर करेक्ट, तनुश्री करेक्ट, राइट? देन आई विल जस्ट चेक. इजी इनफ ना? सिंचना करेक्ट, सिंचना. सिद्धार्थ करेक्ट, श्राव्या करेक्ट. इजी इनफ. बहुत सिंपल सवाल है कि नहीं? Which formula to use? Very good Brinda, very good Kartikeya, सर very good Shreya, very good Sandhya. Simple है ना? फॉर्मूला Correct. Because ये formula is F is equal to MA. मास इनटू एम Exactly, because mass is given. Mass is what? 100 kg. Acceleration is what? 10 meter per second square. So formula putting getting सवाल है सर. ये तो क्या पूछ रहे हैं आपसे? बच्चे का सवाल पूछ रहे हैं हमसे, है कि नहीं? बच्चे का सवाल पूछ रहे हैं हम तो. F is equal to what? MA, which is equal to what? 100 into 10, which is 1000 Newton. Okay. Right. So sir, this is level 1 problem. This is level 1. बहुत simple, बच्चे वाला. Okay. Now, if I talk about level 2 problems, tell me if I talk about level 2 problems. Okay. Right. Just give me an example. Okay. Okay. If I talk about level 2 problems, so
in level 2 problems what can be done? Tell me, खुद सोचो एक बार, level 2 problems में क्या करेंगे हम लोग? बताओ everyone. फॉर्मूला तो यही है ना, फॉर्मूला मैंने ये लिखा, सर राइट? हमारे अगर पास ऐसे एक्सेलरेशन नहीं होगा, बस मास होगा और हमें फाइंड आउट करना है। but again we know that if we have one variable, we need how many equations? One equation or two equation? Tell me. Sir, one. One na. There is a one. One variable, one Sir, equation. one variable, one equation. Now think about it. The question is this, everyone. So again mv minus u by tb formula putting getting है, अगर velocity दिया हो तो निकल जाएगा. Now when talk about level 2 problems, level 2, ठीक है, level 2. Level 2 कब होगा? When use of motion. हाँ है ना, जब मोशन कॉन्सेप्ट यूज होगा तब वो लेवल 2 बन जाएगा. यस और नो? टेल मी. सर जैसे तो सवाल मैं दे रहा हूँ, ठीक है एवरीवन, सी दिस. A car starts from rest and moves 20 meter in 10 seconds. Okay, 20 meter in 10 seconds. Find the force applied by the engines. Sir, what's the weight of car? Okay. Here, mass of car is given as same 100 kg. ठीक है, अब बताओ क्या ये यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग है? Tell me, is this direct formula putting getting? हाँ सर. No ना. No, sir. Right? सर हम लोग एक्सेलरेशन को 20 मीटर पर 10 सेकंड्स कर सकते हैं. तो पहले दिया हुआ क्या है? पहले write down in the all the information. So u is given, u की given है. What is the value of u? What's the value of u? 2 meters per second. 0. तो सर After इनिशियल initial. Right? है ना? As a initial. Correct. Distance is given. Distance कितना है? 20 meter. 20 मीटर. Time कितना है? 10 10 seconds. seconds. Right? तो ये तीन information दिया हुआ है ना. But मुझे क्या चाहिए? मुझे या तो v चाहिए नहीं तो a चाहिए. Either I require v नहीं तो I require a. So can I directly require a? Can I directly find a? Yes sir. Which equation we can use? Which equation motion we can use? The m is equal to v minus u by t. अरे तो v नहीं पता ना, but directly a भी निकाल सकता हूँ ना. So which equation motion we have to use? Tell me which equation motion? F equals to ma. Equation of motion ना, a कहाँ पता है? a पता है क्या तुमको? नहीं पता सर. नहीं सर, पहले a नो निकालना नहीं पड़ेगा पता ना. सर, इसीलिए पूछे. राइट, तो पहले a के लिए क्या निकालना पड़ेगा? a के लिए तो फॉर्मूला है. हाँ सर. v Which minus formula? u by t. Sir, S is equal to ut plus half at square. ठीक है, s is equal to ut plus half at square. यहाँ से तुमको क्या निकल रहा है? a निकल रहा है, बट है ना? करेक्ट. s is equal to ut plus half at square. Yes or no? s is given. Tell me, s is given. हाँ सर. 20. u is given 0 plus half into a नहीं पता ना, a निकालना है into t स्क्वायर कितना है? 100. So a कितना हो गया बताओ? इधर जाएगा हो गया 2 into 20 40 by 100. कितना हो गया बताओ? 0.4 meter per second square ना, डायरेक्टली 0.4 ना. डेसिमल्स गाइस, डेसिमल्स आता है ना. सर पर ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर? कौन सा फॉर्मूला? ये s is equal to ut plus half at square. हाँ सर. तो मोशन भूल गए थे, मोशन भी भूल गए थे पूरा, है ना? मोशन का 3 इक्वेशन मोशन था ना, याद है कि नहीं सबको? मोशन फर्स्ट चैप्टर v is equal to u plus at, डिवीजन इसलिए तो इंपॉर्टेंट है. सेकंड इक्वेशन वाज s is equal to ut plus half at square. थर्ड वाज v square is equal to u square plus 2as. हाँ सर याद आ गया सर. याद आया? हाँ है ना? सर. इसलिए रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, राइट?
इसका तो मैंने नोट्स भी भेजा है शायद, हाँ सॉरी अभी याद आया मुझे। ओके सो एक्सप्रेशन निकल गया, अब निकल जाएगा। Yes, sir. निकल जाएगा सर। ओके ओके यार आई थिंक होम स्कूल one students know more than homeschool two students in physics now. सर हम लोग प्रो है। Yes, sir. Right? Sorry, सर Shravya. हम सर सब लोग होम स्कूल 2 लोग ऐसे कर रहे होंगे, ये क्या सर सिखा इसीलिए आपको स्टार्ट करना चाहिए था सर होम स्कूल पहले, हम जब 6th में थे। Sorry, I totally forgot कि homeschool सर आपने बोला था ना सर, हम लोग बोले सर हम लोग लेकिन सिखाएंगे सर लेकिन भी थोड़ा जो- थोड़ा समझ में आ रहा है सर, कंटिन्यू करो। ये इक्वेशन मुझे मैं बता दूंगा, ठीक है? Don't worry guys, I will send you the lectures of motion, right? Please go through it, but this is a formula, this is the equation of motion. हम लोग पढ़ेंगे, don't worry. ठीक है? सर आपने ये समझा दिया सर, इनको हमें नहीं पढ़ाया अभी तक। हाँ ठीक है, तो बेसिकली these are the equation of motion, right? हम लोग सर मैं नोटेड फिर से डाउन। पढ़ा दूंगा, don't worry, but अभी समझ लो कि हम लोग इक्वेशन मोशन यूज करके ना यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन या कोई भी वेलोसिटी निकालने के लिए। ओके राइट, अभी ये समझ में आया कि नहीं? टेल मी, ये समझ में आया कि नहीं श्राव्या? आया Yes, sir. हाँ Understood. सर समझ में आ गया। है ना? राइट, सर तो अभी ये आप नोट कर लो, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नोट कर लो, ये 3 नोट करो, दिस इज इक्वेशन मोशन, नोट कर लो, ठीक है? ऑलरेडी डन सर। सर 2 Okay. मिनट सर नोट कर लो। नोट कर लो, सर ऑलरेडी नोटेड। हाँ वेरी गुड। सर पहले किया होगा वही बोल रहे हैं। तो अभी फोर्स निकल जाएगा, टेल मी, डायरेक्टली निकलेगा अब। व्हाट हाँ इज सर फोर्स? फोर्स इज निकलेगा। इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन नाउ। मास इनटू एक्सीलरेशन सर। करेक्ट, व्हिच इज 100 इनटू 0.4, कितना हो गया? Sir, 40। 40 करेक्ट, 40 न्यूटन। अब समझ में आया सबको लेवल 2 प्रॉब्लम्स? हाँ सर, हाँ लेवल सर। 2 प्रॉब्लम्स में क्या करेगा? तुमको मोशन का कॉन्सेप्ट मिला देगा, यस और नो, राइट? सी हाउ when you talk about physics, chapters can be interrelated, yes or no, right? ये कौन कर रहा है इसे? Okay, right? No, not everything, but yes, most of the chapters are connected. For example, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, that is related to motion, right? And it is called as mechanics. Physics में ना इस क्वेश्चन बोलते हैं mechanics. So mechanics में हर चीज connected होता है, हर चीज connected होता है, ठीक है? तुमको हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट कहीं से कहीं पूछ दिया जाए, तो और इट इज लाइक समथिंग दैट वी सी इन आवर डेली लाइफ। ओके, हर चीज होता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, बट दिमाग में रखना है, सब कुछ इजी है, दिमाग में ये रखना है, सब कुछ इजी है। यस और नो? क्लियर दिस इज क्लियर? रेज योर हैंड एवरीवन। सो न्यूटन सेकंड लॉ सबको समझ में आ गया? न्यूटन सेकंड लॉ सबको समझ में आ गया? ओके चलो, वेरी गुड, यस यस वी विल डू काहूट। देन थर्ड लॉ, रागिनी अब देखो, थर्ड लॉ इज सिंपल, थर्ड लॉ इज सिंपल, है ना? मान लो तुम किसी को थप्पड़ मार रहे हो, तो तुमको क्या करेगा? सर उल्टा एक और थप्पड़ उल्टा थप्पड़ मारेगा। सर ये लॉ सबको पता है सर। एवरी एक्शन हैज इट्स ओन ऑपोजिट रिएक्शन। लिखने दो ना सर, एक बार पुराना वाला विंडो सर लगाओ ये ना सबको पता है सर, सबसे फेमस लॉ है ये। राइट, सो बिकॉज़ गांधी जी कोई फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कि एक गाल में थप्पड़ मारो, दूसरा गाल दे दो, ये वाला ले लो। सर वो तो डबल हो जाएगा सर, डबल हो। सर आउटडेटेड हो गया सर, दैट इज हाँ, आउटडेटेड, सर। कोई नहीं करता ऐसे सर। सर एक सर, डाउट सर अभी रिटर्न में थप्पड़ मारते हैं सर सब। सर 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 हाँ बोलो। सर ये सेकंड लॉ का आपने बोला ही नहीं सर, आपने बस एग्जांपल से शुरू कर दिया। 10 न्यूटन इस साइड से पुश करे, 10 न्यूटन इस साइड से, वो वाला। ये क्या है फिर? व्हाट इज दिस? ये क्या मैंने लिखा है? सर आपने तो फॉर्मूला लिखा है। यही है सेकंड लॉ, यही तो है, दैट इज सेकंड लॉ। स्टेटमेंट जो है, नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ इज द फॉर्मूला ओनली। जैसे आपने लिखा ना लॉ ऑफ इनर्शिया में भी वैसे सोच रहा हूं, नाम मैंने नहीं लिखा क्या था। नहीं ठीक है, सेकंड लॉ इज फॉर्मूला, ठीक है? सेकंड लॉ इज दिस कांसेप्ट, ओके? नाउ थर्ड लॉ, अब एक चीज बताओ, थर्ड लॉ हम लोग थर्ड लॉ इज सिंपल, राइट? थर्ड लॉ इज सिंपल, टू एन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यस और नो, राइट? हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा सही है ये स्टेटमेंट। इधर मारा इधर। सर पर है कि इक्वल नहीं? नहीं सर, अगला वाला जोर से मारता है। सर ये सही कहा। मुझे लगता है, ठीक है, बट कुछ सोचना, अगर तुम एग्जाम में पढ़ाई नहीं करोगे, तुमको क्या मिलेगा? सर 0 सर अंडा। लड्डू, राइट? है ना, अंडा मिलेगा।
तो तुम्हारा एक्शन कुछ नहीं है, तुमको रिएक्शन में कुछ नहीं मिल रहा हाँ है, सर, राइट? क्या एग्जांपल दिए? So that is the सर thing. जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, चलो ठीक है, कहावत भी बन गई सर। So I can say that now. Have you ever tried to push the walls? Tell me, ever? सर वॉल्स सर Wall. सर The wall. वॉल Pushing- में पुशअप। सर उसका सर- कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। Sir, once I had tried it. Okay. हाँ सर मैंने कोशिश की है घूसा मारने की, तरह तरह के टोटके सर। सर ये क्या है? Scale है. सर रूलर क्यों यूज कर रहे सर हैं सर? गुस्से में करते हैं सर वॉल को मार। रियल स्केल लग रहा है। हाँ, अरे I was trying to draw the straight line. सर आपको टर्न करने के लिए इसको टर्न करना पड़ेगा सर रूलर को। सर 45 डिग्री से उसको वैसे करो सर। Now next class में सर मैं उससे तुम्हें- अच्छा आपका जो राइटिंग पैड है उस पे स्केल रख के लाइन खींच दो सर। सर वही सेम लैपटॉप में जाएगा। Oh, wait. Oh. ठीक है, रहने दो, बीच मारो, ये स्ट्रेट लाइन मान लो। Assume this is a straight line, ठीक है, right? कहाँ है सर? ये जो दीवार है, क्या ये दीवार है ना? Okay, now suppose, oh, nice, क्या हुआ सर? कुछ नहीं। सर आप शेप ढूंढे ना सर। सर नहीं सर, आप बार ओ नाइस बोलते फिर पूछने से क्या हुआ? कुछ Okay, ध्यान दो, suppose, right, ये हमारा आदित्य है, थैंक यू सर। और आदित्य दीवार को पुश कर रहा है, लाइक दीवार को पुश कर आदित्य है ना? तो ये लगा रहा है 100 न्यूटन फोर्स। अब दीवार मूव करेगा क्या? नहीं सर, सर आदित्य खुद ही मूव कर सर जाएगा। वॉल का मटेरियल पे डिपेंड आदित्य होता है। मूव करेगा सर। बट खुद सोचो, अगर दीवार मूव नहीं कर रहा है, नेट फोर्स दीवार पे क्या आना चाहिए? यस पूर्वी, करेक्ट, वो भी सही नेट है। फोर्स इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, बिकॉज अगर इसमें फोर्स लग रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है ना, इसमें फोर्स लग रहा है तो उसको मूव करना चाहिए था, हाँ सर, right? तो मूव नहीं कर रहा। नहीं ना, बिकॉज अगेन ये क्या है, फिक्स्ड होता है, यहाँ से फिक्स्ड होता है ना, इसलिए मूव नहीं कर रहा है। बट तुम कुछ सोचो, अगर तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो, राइट, ये जो दीवार है ना, ये भी तुम पे फोर्स लगाएगा, यस और नो? हाँ हाँ सर, जैसे हम किसी चीज पे बैठते हैं। एग्जैक्टली, 100 न्यूटन, ये भी तुम्हें फोर्स सर, लगाएगा। जैसे चेयर पे बैठते हैं, चेयर भी हमारे ऊपर फोर्स लगाते हैं। सर तो नेट फोर्स जीरो मूवमेंट नहीं होता। नहीं, वही बताओ ना कि देखो यहाँ पे बैलेंस फोर्स। now सर यहाँ स्टैटिक पे फ्रिक्शन। बताओ, first of all, this is not same as, right? What? This is not same as balanced and unbalanced, because see, it is not same as this force ना, tell me, is this same as this case? 100 यहाँ पे और इस साइड में 100, नो सर, ये क्या सेम है क्या? नहीं सर, हाँ या ना, tell me. सर मतलब बीच में कोई same नहीं। ऑब्जेक्ट होना चाहिए था सर। सर इधर दो लोग अप्लाई कर रहे फोर्स। Exactly, यहाँ पे दोनों फोर्स सेम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हुआ है, हाँ या ना? हाँ सर, इधर दोनों अपने आप पे। सर दूसरे केस में जो हम फोर्स दे रहे हैं But यहाँ पे क्या है? When you talk about action reaction, it is always applied on, tell me, another object. सर अनदर ऑब्जेक्ट। सर सीसो। जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट वही फोर्स हम दे रहे हैं। Exactly. For example, chair का example ले लो, chair का example. Suppose someone is sitting on the chair, right? है ना? Someone is sitting on the chair, right? लेट रहा है सर, वो बैठा नहीं है, लेटा है। बैठा है कि लेटा है सर? बैठा। Ignore my drawing. You know why I am not an art student? ठीक है? चेयर में ठीक है? So suppose कि we know this person. Suppose this person is, right, Akshit. ठीक है, अक्षित आजकल वीडियो नहीं ऑन कर रहा। अक्षित, आई मिस यू सो मच। अक्षित सर आप मुझे नहीं मिस कर सर, मेरा तो दिल सर दब गया। बस चीटिंग है अक्षित सर को बहुत आपने। दिन से नहीं देखा ना, इसीलिए। सो ये mg नीचे क्यों लगेगा, हाँ या ना? राइट, ग्रेविटेशन फोर्स, यस हाँ सर, ग्रेविटी हमेशा अपने सर तरफ। फिर नीचे से वो बाउंस होके उस पर ही लगेगा। यस। अब बताओ कि ये नीचे जो फोर्स लगा रहा है, इस पे लगा रहा है, कुर्सी पे लगा होगा ना, टेल मी, दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन द कुर्सी टेबल, यस और नो? मेरे को याद नॉर्मल फोर्स। एग्जैक्टली। अब बताओ कोई और फोर्स ऊपर लगेगा? नहीं यस सर, नॉर्मल हाँ सर, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, करेक्ट, ऑसम।
So don't you think, sir, this is also action reaction? Yeah, sir. It will be equal to the Exactly. mg. Anyone have any issues? Applying the force. No, sir. No issue. I hope No, you all sir. understood this. Yes, sir. So don't That's think called that normal we, force. yes, when we talk about walking, right? The same सर जब concept is सोल्जर applicable. गन चलाता है तो वो लोग भी पीछे की तरफ जाते हैं. Exactly. The recoil of the gun is also action reaction. हाँ या ना? Right? So action reaction में कितने objects होने चाहिए? एक की दो? दो. तो सर अपने आप पे फोर्स डालने के लिए 2. Exactly, right? जैसे यहाँ पे तुम action reaction की बात कर सकते हो क्या? सर कर सकते हैं, अपना कौन एक से हाथ केस लेके में? दूसरे हाथ को मारेंगे। कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक ही ऑब्जेक्ट है ना, राइट? और ये सर move कर कौन रहा से है। केस में सर? क्यों सर, ऐसा से क्यों केस नहीं हो में? सकता सर? अपना एक हाथ लेके दूसरे हाथ पे घुसा मारेंगे, फिर हमारा दूसरा हाथ लेके हमारे सर, वो उस तो हाथ हम पे ही घुसा force- मारेंगे। अरे, सर वो तो I'm हम ही talking फोर्स about तो दो हाथ हो गए ना, दो ऑब्जेक्ट हो गया ना, राइट? सर. है कि नहीं? राइट? हाँ, स्प्रिंग भी कर सकते हो ना श्राव्या, राइट? है कि नहीं? बिकॉज सी इफ यू अप्लाई फोर्स नीचे की ओर तो फोर्स ऊपर की ओर, स्प्रिंग ऊपर की ओर खींचना चाहता है, दैट इज आल्सो लाइक दैट ओनली, ठीक है? ओके? स्प्रिंग में जब फोर्स लगता है तो वो वही फोर्स हमें देके ऊपर उछलता हाँ, राइट? हाय अक्षय. है। अक्षय So Akshit, Sir, you know, so there's some cute guys, right? है ना, जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे. तो इस क्लास में तो बहुत लोग हैं. लास्ट ईयर में अक्षित बड़ा हो गया, बट अक्षित एक साल सर बड़ा हो हमारी क्लास में मधुरनाथ साई नाम का कोई है, वो तो मेरे को आज पता चल रहा है। सर वो हमारे हाँ, क्लास मधुर में है ना? सर वो 8th में. मधुर is in 8th, right? मधुर समझ में आया तुमको सब कुछ? मधुर आया कि नहीं यहाँ पे? हाँ सर समझ में आ रहा है. ओके, ऑसम, ठीक है. Right? तब तुम लोग को देख रहे हैं ना कि कितना कुछ है फोर्स में, तुम लोग को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म भी हो गया है कि नहीं? सर हमारे क्लास सर ये तो कभी नहीं पढ़ा सर फोर्स वाले सर, चैप्टर. मतलब कि सारे ऑब्जेक्ट हमारी तरह बदतमीज होते हैं. क्या बोल रहे हो? सर सारे ऑब्जेक्ट हमारी तरह बदतमीज होते हैं सर, इसके लिए वापस ठीक है, चलो. सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग. न्यूटन्स का तीनों लॉ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, यस सर. यस सर. यस. सर आप हमेशा हाथ उठाने के लिए क्यों बोलते हो? स्लीपिंग बेड में भी वही चीज होगा ना, राइट? सेम हाँ mg सर नॉर्मल नीचे फोर्स. की ओर, नॉर्मल ऊपर की ओर. ओके, सर ट्रैम्पोलिन में भी थर्ड लॉ सर काहूत। वेट खत्म तो करने दो, अभी रिवीजन खत्म नहीं हुआ ना. बताओ, फ्रिक्शन एज अ अपोजिंग फोर्स कितने लोगों को याद है ये? कितने लोगों को याद है ये? सर गोल्फ बॉल का था ना सर, वीडियो में। Sir, I remember. सर कैरम का था सर। सर गोल्फ का। वेट, ये इतना मैंने मेहनत किया था. आदर्श आज गायब है नहीं? सर हाँ सर, आदर्श को बहुत बैड पड़ी हाँ थी। सर मैंने उसको इनवाइट किया था सर मीटिंग के लिए, लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं किया रिक्वेस्ट. सर बैडमिंटन खेल रहा होगा। बैडमिंटन खेल रहा होगा. ओके, सो सी हम लोगों ने पूरा एक क्लास स्पेंड किया था इस पे, फ्रिक्शन पे, है ना? यस और नो? देखो ये सब हम लोगों ने Yes, अभी देखा sir. था. Yes, sir. ओके, सो गाइस, होम स्कूल 1 स्टूडेंट्स ये सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ सर. आप ही तो सिखाया सर. कौन सा सर? सर मुझे तो ये भी नहीं समझ आता, होम स्कूल 1 स्टूडेंट्स 8th के हैं कि 6th 7th के हैं। होम स्कूल सर ये 1 तो मेरे पास 6 7, 7. ठीक है? होम 6 स्कूल 2, राइट, इज सर आपने एक साल में सब कुछ पढ़ा दिया सर उनको. सर मुझे लगा सर- होम स्कूल का फर्स्ट वाले, मतलब जो पुराने वाले हैं वो मैंने सोचा। नहीं वो बीटा वर्जन था, ठीक है? बीटा। सर बीटा मतलब क्या होता है? सस्ता वाला। Official. नहीं था ना, ट्रायल. ट्रायल था. तुम सर लोग मतलब आपने 2 ट्रायल लिया? आपने सर 2 गेम का भी बीटा आता है. ओके, चलो तो ध्यान दो, ये सब नोट्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, आया ना? सर पर मुझे Yes, ध्यान sir. नहीं। Yes. सर ये Sir, 7th आपको तो हाँ सर. हाँ सर. हाँ Yes, सर. sir. Notes Okay. सर ये तो 8 को भी आपने पढ़ा था सर, फोर्स एंड हाँ. प्रेशर. राइट? हाँ तो ये फोर्स का डिफिनेशन एंड ऑल सब हो गया था. कैरम वाला एग्जांपल याद है? चेंज मोमेंटम हाँ, वाला. हाँ सर. काहूत Okay. की क्लास सर. हाँ, काहूट हाँ, होता है ना, राइट? सर तो मैं वीडियो का बात कर रहा था सर। ओके, वेट, डोंट वरी. मैं Momentum, पूरे sir. कोर्स का जो भी क्लासेस हुआ था ना, सबका वीडियो अपलोड करूंगा, डोंट वरी, ठीक है? यस जिया, आई विल सेंड दैट. ओके, सर इसका नोट्स का पीडीएफ भेजो सर, वीडियो देखते ना तो वो धीरे धीरे 1 घंटा ले लेता है। कैरम वाला एग्जांपल मैं वीडियो भेज दूंगा, नोट्स भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? ओके, सर मोमेंटम का ना सर. हाँ, मोमेंटम का, चेंज मोमेंटम वाला, राइट? सो फ्रिक्शन. नाउ ये आदर्श ने काफी डिस्कशन किया था,
राइट? श्राव्या, रागिनी, आई गेस तुम लोग का भी फ्रिक्शन में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हाँ या ना? हाँ Yes, सर sir. राइट? हाँ सर, पूरा डिबेट कर दिया था सर आपके साथ। आदर्श आपको आपके wrong साथ proof पूरा करा। डिबेट कर दिया था सर। हाँ, अब बताओ फ्रिक्शन, अगर ये टैबलेट, राइट, अगर ये टैबलेट रखा हुआ है तो क्या इसमें फ्रिक्शन लगेगा, हाँ या ना? सर कौन सा टैबलेट? नो सर, नो, सिंपली सर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर नहीं। Exactly. No. Until unless you try to move it. Yes or no? Yeah, Until sir. unless Yeah, sir. you apply a Yes, sir. force, friction will not be there because friction हाँ, is sir. opposing force. Clear हुआ ये चीज? यस सर, यस सर। है ना? Yes, sir. जैसे हाँ, यहाँ पे sir. एग्जांपल दिया कि अगर सर एक जैसे की हम जगह लोग अभी 10 न्यूटन पुश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन उसे वापस 10 न्यूटन दे रहे हैं वैसे। exactly, The right? friction will also depends in the surface of the object. Yes, it also depends on surface of the object, right? So we have discussed what is the formula of friction. Tell me. I hope all of you remember. No, sir. नो सर। Forgot. हाँ भूल गए. सर। So हाँ, friction, as I said, friction depends on what? mu mg. Yes, friction depends on surface of the surface, which is your coefficient of friction. है कि नहीं? Then it So what is depends U? on So what is U? normal force. It depends on normal force. ध्यान दो, normal force पे depend करता है ना? Right? And generally normal force is basically mg के equal. Generally, but actually it is normal force. तो अगर तुम इन दोनों combine करो तो क्या हो गया? F is actually less than equal to, always less than equal to mu n. ठीक है? Why less than equal to? Tell me. सर उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। Exactly. Friction का maximum value is mu n, maximum value, right? और it is mu mg अगर surface perpendicular है तो, अगर ऐसे, ठीक है? Right? ये सब लिखा हुआ है, don't worry, है ना? Yes, correct. Friction cannot, है ना? Friction can help an object to move, help an object, right? हाँ या ना? हाँ सर, Sir, यस सर। Okay. And actually we all move because of friction only. Don't you think? We all move because of friction only. Yes, sir. हाँ Yeah, सर, sir, we कार apply भी the- सब चीज। the friction Yes. also helps to stop an object. Okay. for writing also. Yes. Now अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया जाए, हाँ या ना? हाँ सर। बहुत किया जाए इंटरेस्टिंग सवाल, मतलब मजा आ जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा। Sir, हाँ सर, बोलो। साइकिल चलाया हो सब कोई? यस यस सर, हाँ सर। Yes, sir. सर ये था हाँ, सर। क्वेश्चन। है कि नहीं? अब देखो, कभी भी तुम लोगों ने सोचा है सर साइकिल का चक्का घूमता है, सर घूमता ही नहीं घूमता है? हाँ सर, हाँ, ऑफ कोर्स सर। घूमता है। हाँ सर, आपने ऐसे सवाल पूछ के यही बोला कि सर आपने कभी खाना बनाया है क्या सर? सर कभी कभी सर आपके पीछे जो लहर आ रहा है ना सर समुद्र का, मेरे को लगता है आपको ले डूबेगा। नहीं, इतने आसानी से कैसे डूबेगा? ठीक है, Sir, think आप about it. पूरे Suppose sincerity के साथ आए हो। suppose this is your cycle के दो चक्के हैं, है ना? सर Right? कलर Sir, हाँ, wheel कलर सुंदर सर। ठीक है, चलो दोनों ब्लू बना दे रहे हैं, ठीक है? Sir, Right? wheel बोलते हैं, चक्के मत This is चक्का, this is wheels. सर Okay, English. साइकिल भी बना दीजिए सर, वही बचे। देखो, you guys know that my drawing is hard. सर लेकिन वो सर, डॉट बता देंगे जाए सर। कैसे सर सर्कल से रेडियस? Okay. try सर आप गूगल से इमेज ले लो सर, आशीष सर भी वही करते हैं। अरे ठीक है ना, गूगल में जाओ, राइट, इमेज लो, ये पैडल है। सर ये आगे की तरफ होता है सर, आपने पीछे बना दिया। अरे ठीक है ना, ओके, सर साइकिल पीछे। साइकिल। तो चेन कितना लंबा है? सर अच्छा है सर ड्राइंग। कैसे बनाए? सीट बांधे आपने? हाँ सर, हाँ सर अच्छी है सर, मेरे से ये अच्छी सर बनी सही है। है ओके, सर, मैं सर, तो ये तो- स्क्रीनशॉट दूंगा सर। अब बंदा ले now the question is, पढ़ने की कोशिश करेगा सर। okay, देखते कितने लोग समझते हो, एक्चुअली समझते हो, ठीक है? Right, this is a सबसे सुंदर डायग्राम that I can make, है कि नहीं? Now the सर मैं तो question is, स्क्रीनशॉट भी ले लिया। question is this. So this is wheel A, this is wheel A, this is wheel B, है ना? तुमको बताओ, जब साइकिल तुम चला रहे हो, right? When cycle, case one, when you are paddling, right? Cycle is moving, right? है ना? Paddling जब तुम कर रहे हो, है ना? I'm horrible at, okay. writing fast.
सर अगर पैडलिंग करेंगे सर जरूरी नहीं कि वो मूव करेगा सर, अगर चेन ढीला है तो नहीं मूव करेगा। अरे क्या 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 है चेन सर? नहीं है सर सर आपकी साइकिल कंडीशन में सप्लाई चेन लगी करके हुई डाल है। दो सर की ठीक है, चेन मेरे साइकिल में चेन लगी हुई है, ठीक है। तो बताओ ए व्हील ए पे फ्रिक्शन डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? फॉरवर्ड। Friction, okay, in A and B. So this is forward react and this is backward. So A पे forward होगी backward. You just have to tell me A पे forward होगी backward. सर फॉरवर्ड होगा। सर मैसेज Sir, करना है। forward. फॉरवर्ड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। सर फ्रिक्शन इज एन ऑपोजिंग फोर्स Okay, so नहीं ये move कर रहा है इस direction में. The cycle is moving in this direction. Cycle is moving in this direction. so then it's सर backwards लेफ्ट में जाएगा सर बैक। सर अगर आगे जा रहा है तो backwards पीछे जा रहा है तो सोचो, everyone think about it. I'll give you 2 minutes. अभी हम लोग पैडल चला पाएंगे। Okay, okay, guys. जब चलाएंगे तो बैक वाला ही स्टॉप करेंगे। हाँ, तो we actually when we paddle, सोचो एक बार, अब step by step सोचो, अब ध्यान दो, चुपचाप हो चुके, ध्यान दो। Now, when we paddle, this wheel, okay, think about it. This wheel will move in this direction, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये जो point है, ये point किधर जाना चाहेगा, आगे कि पीछे? पीछे। This point will try to go आगे बैकवर्ड्स। backwards So if this point will try to go backwards, the friction will be in which direction? सर बैकवर्ड। आगे बैकवर्ड। Sir, आगे. Forward ना? फॉरवर्ड। सर ऑपोजिंग फोर्सेस सर तो ऑफ कोर्स आगे होगा Yes or no? हाँ या ना? Yes, sir. Right? But अब बताओ ये जो चक्का है, ये तो स्लाइड हो रहा है ना? Yes Yeah, or no? sir. इसको कोई मूव नहीं कर रहा है, ये तो स्लाइड हो रहा है। सर which one? A or B? This B1 is sliding actually, Yes sir. है ना? तो Because B is actually force- sliding, तो B इस Sir, तरफ मूव because कर रहा है। the force Yes or no? side in A sir Yes. is transferred to B. हाँ, कुछ जब तुम साइकिल चलाओगे ना तो तुम एक्चुअली A को मूव कर रहे हो, तो B स्लाइड करता है, हाँ या ना? टेल मी। हाँ सर। तो B स्लाइड कर, तो B आगे क्यों ऐसे स्लाइड कर रहा है? If it is sliding, इसमें फ्रिक्शन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर backwards Backward. यहाँ पे आंसर क्या हो गया? When it is moving, friction is in forward direction. Forward. Backward. फ्रंट। Yes or no? Friction is equal to Yes. backward. और यहाँ पे भी backward. But जब तुम ब्रेक लगाते हो तो ये चलना बंद हो जाता है, हाँ या ना? हाँ सर। रोटेट करना बंद हो जाता है। सर क्योंकि And because it was moving, है ना? Because it was moving, it has tendency to move inertia. Yes or no? यस। तुम जैसे ही ब्रेक लगाते हो वैसे ही रुक जाता है क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं सर बस सर जो एक्स्ट्रा फोर्स होता है वो थोड़ा यूज हो जाता है। Because of inertia it slides. Yes or no? यहाँ से हाँ सर। Right? So अगर तुम स्लाइड कर रहे हो तो इस पे क्या होगा? सेम केस हो गया ना? सेम केस हो गया, तो ये भी बैकवर्ड हो जाएगा, राइट? और ये भी बैकवर्ड हो जाएगा। यस और नो? हाँ सर। Sir, I had one doubt. यस। Sir, the wheel beat actually rotates, no, sir? यस, व्हील्स ओनली। बैक वाला व्हील रोटेट करता है ना, आगे वाला स्लाइड करता है, स्लाइड करके रोटेट करता है। यस और नो? फ्रिक्शन रोटेट करवाता है इसको। अच्छी बताओ, पीछे वाले व्हील को कौन रोटेट करवा रहा है? तुम की फ्रिक्शन? सर हम पीछे वाले को हम लोग करा रहे हैं। और आगे वाले को सर कौन आगे rotate वाले को करवा रहा है? फ्रिक्शन करता है सर फ्रिक्शन फ्रिक्शन। यस और नो? अब समझ में Yeah, आया sir. सबको? यस। यस सर तो अगर ये इसको ऐसे रोटेट होना है, कॉमन सेंस सोचो, अगर इसको ऐसे रोटेट होना है तो इसको कौन रोटेट करवा रहा है? सब फ्रिक्शन रोटेट करवा रहा है। यस और नो? तो हाँ। फ्रिक्शन डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए ना? अब समझ में आ रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. यस। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? कभी सोचा था कि नो सर नो डाउट इतना नहीं फिजिक्स? सर, इतना सोचे नहीं सर। रागिनी अब समझ में आया तुमको? रागिनी अब सर समझ में मुझे आया? डाउट है सर। सर मुझे डाउट है सर बी बैकवर्ड कैसे होगा? व्हील बैकवर्ड नहीं, फ्रिक्शन बैकवर्ड है ना, सर बी अच्छा फ्रिक्शन। सर मैं सोचा ये डायरेक्शन का फ्रिक्शन है ना। सर मैं सोचा आप व्हील के बारे में बात कर रहे हो। नहीं, अब देखो, जब तुम ब्रेक अप्लाई करते हो तो क्या होता है? खुद सोचो, मैं बता रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा बोल रहा हूँ। जब तुम ब्रेक अप्लाई करते हो तो ये रोटेट करना बंद हो जाता है, हाँ या ना? थिंक हाँ। अबाउट इट। व्हील्स रोटेट करना बंद हो जाता है, बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन, है कि नहीं? हाँ सर। फिर फ्रिक्शन की नाउ द टेंडेंसी ऑफ मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, फॉरवर्ड दिस डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन विल बी इन विच डायरेक्शन? बैकवर्ड्स।
बैकवर्ड्स। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है सर। राइट, यस और नो? क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके रागिनी, अब तुम्हारा सवाल। रागिनी, अब तुम्हारा डाउट क्या है रागिनी, बताओ। सर ए में मोशन ऑफ फ्रिक्शन किस साइड पे है सर? ए में देखो चक्का किधर मूव कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, यस और नो? बिकॉज तुम पैडल कर रहे हो, आगे जा रहा है ना, राइट? Yes. तो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये किधर मूव कर रहा है? इधर मूव कर रहा है, यस है कि नहीं? तो फ्रिक्शन किधर होना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन सर। गॉट इट। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस ओके सर। नाउ अब बताओ बी को कौन मूव करवा रहा है? सवाल श्राव्य पूछो अपने आप से सवाल, बी को तुम मूव करवा रहे हो क्या? टेल मी, बी को तुम मूव करवा रहे हो? नहीं सर, फ्रिक्शन। नहीं सर, बी को ए मूव करा रहा है। फ्रिक्शन। ऐसा, हाँ सर, ए का फ्रिक्शन। अब अगर फ्रिक्शन मूव करवा रहा है, थिंक अबाउट, तो फ्रिक्शन डायरेक्शन किधर होना चाहिए? आगे कि पीछे? पीछे। सर पीछे। पीछे ना। तो फ्रिक्शन ही आगे मूव करा रहा है तो चक्का उल्टा फ्रिक्शन। घूमने लगेगा ना। थिंक अबाउट इट, उल्टा घूमेगा वो। है कि नहीं? कभी देखा है कि एक चक्का इधर ऐसे घूम रहा है, एक चक्का ऐसे घूम रहा है? कभी देखा है? नहीं सर। सर साइकिल घूमेगा ही नहीं। साइकिल चलेगा ही नहीं, है कि नहीं? है ना? अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस और नो? इधर से 5 न्यूटन, उधर से 5 न्यूटन। So that is why when you talk about mechanics ना, it is actually visible. तुम अगर थोड़ा सा imagination अच्छा है ना, और तुम चीजों को ऑब्जर्व करते हो, तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ या ना? ओके सर बेसिक में कॉम्प्लेक्स फिजिक्स। सर अब हर चीज बेसिक्स होता है। So we are done with friction as opposing force. We are done with type of friction. Okay, type of friction we haven't done ना? Okay, so ये सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? सर अभी तक क्लास है। रुको एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है ना। सो व्हेन यू टॉक टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तो अभी हम लोगों ने दो चीज देखा था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सर फ्रिक्शन जो है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तब भी लगेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब भी लगेगा, है ना? सो देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रिक्शंस। आई विल जस्ट message, I'll just type, right? There are two type of frictions. First is called as static friction. ठीक है? It is static friction. Now what is static friction? As the name suggests, tell me. Sir, the Friction on applied, rest. yes, when object to move. Rest. is in rest. Yes or no? Clear है? And next is called as kinetic friction. ठीक है? सर आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं? डायनामिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। डायनामिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं, kinetic friction बोल सकते हैं, है ना? Because it is changing, right? ठीक है? So when you talk about Sir, kinetic friction friction, applied when object is not in rest. exactly. So it is basically what? Motion. It is The basically, friction applied when yes, friction when object object is in When motion. object is in in motion. motion, है कि नहीं? अब ना depending on type of motion, this is of two types. Depending on type of motion, it is of two types. अब देखो, जब तुम मोशन बोल रहे हो तो या तो वो रोल कर रहा होगा, नहीं तो वो स्लाइड कर रहा होगा। सिंपल सा एग्जांपल है, खुद सोचो एक बार, सिलेंडर कभी उठाया है? गैस सिलेंडर कभी हाँ हाँ सर, सर, रोल करके लेके जाते हैं। रोल है ना? करना इजी है। तो अब तुम उसको अगर खींचते हो, अगर तुम ऐसे खींचते हो तब मुश्किल होता है कि उसको रोल करते हो तब ज्यादा मुश्किल होता है। सर स्लाइड करते वक्त सर मुश्किल होता है खींचने सर। से मुश्किल होता है, रोल करने से इजी। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं सर, स्लाइड और रोल, दो वर्ड आ रहा है, ध्यान दो कैसे हमारी डेली लाइफ में फिजिक्स है, राइट? सो आई कैन से सर दोनों तो मूव कर रहा है, बट एक केस में क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना? इट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और सेकंड क्या हो जाएगा बताओ? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रोलिंग सर। फ्रिक्शन। यस और नो? क्लियर है ये चीज? सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग। यस और नो? यस सर। सर रोलिंग फ्रिक्शन यस से सर। सिलेंडर टाइप में ही लगेंगे। इज स्लाइडिंग, सर क्या आप मुझे स्टैटिक Slicing. kinetic friction राइट? है बोल ना? ओके, एंड व्हाट अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन? When Sir, The when friction object applied is when rolling. object is rolling. Yes, when object is rolling. So अब बताओ रोलिंग फ्रिक्शन जनरली किस शेप के ऑब्जेक्ट में लगेगा? Sir, cylinder, circular. राइट? और spherical. राइट? अब बताओ, जैसे साइकिल की बात कर रहे हैं, साइकिल में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? Sir, The rolling the friction. rolling friction. rolling. Anyone have any doubt in this? No sir, no doubt. हो गया ये चीज? हाँ sir, clear. मुझे एक डाउट। Yes sir. ठीक है? अब एक चीज बताओ। सर डाउट सर, यस, पूछो, डाउट क्या है? तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन वापस सिखाओ ना। मैंने अभी बोला ना कि अगर तुम कोई चीज ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, तब तुम धक्का दे रहे हो,
है ना, तब जो फ्रिक्शन है उसको क्या बोलेंगे हम, स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट, है ना। बट एक बार ऑब्जेक्ट का मोशन में आ गया, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट, तब जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। यहाँ पे एक नोट करके लिख लो, हमेशा नोट करके लिख लो। तो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। 2 मिनट सर, हटाइएगा मत से नहीं नहीं, मैं नहीं हटा रहा। ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा बताओ। ऑर्डर फ्रिक्शन याद रखो, सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टैटिक सबसे ज्यादा होता है, यस और नो, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आया? नहीं Tell me, सर, yes or no? लास्ट वाला सर, लास्ट वाला पार्ट समझ में नहीं आया सर। ऑर्डर देखो, तुम खुद सोचो एक बार, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सिलेंडर अगर रखा हुआ है तब तुम धक्का दे रहे हो, सिलेंडर ऑलरेडी मूव कर रहा है तब धक्का दे रहे हो, और अगर वो रोल कर रहा है तब धक्का दे रहे हो, किस केस में फ्रिक्शन सबसे कम लगेगा? टेल मी। सर स्टैटिक सर, जब वो रेस्ट में है सर मूव, अरे अगर रेस्ट में है, हम तब पुश करें तब। रेस्ट में है तब तो सबसे ज्यादा लगना चाहिए ना। सर, जब वो रोल हो रहा है सर तब। एग्जैक्टली, है कि नहीं, जब वो रोल हो रहा है, यस और नो, राइट, सर क्लियर? 2 मिनट वो वाला स्लाइड दिखाई ना सर, नोट करना। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैंने क्या किया, सॉरी अपडेटेड सम, ओके। सो फ्रिक्शन सर 2 मिनट सर प्लीज। हाँ, राइट, 2 मिनट तुम लोग नोट कर लो, ठीक है, तब तक मैं काउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सर। सर आप काउंट अभी प्रिपेयर कर रहे हो? ऑब्जेक्टिव ना। Shravya, you answer the chat box, Shravya. You have joined here? Okay, this one. Easy enough, jaldi. This is one of the factor causing friction. सर इतना टाइम नहीं चाहिए सर। इतना टाइम नहीं चाहिए सर 30 seconds. Okay, right. Next, the answer is interlocking of surface and force of adhesion. है ना? ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आया। Adhesion मतलब क्या होता है? पता नहीं सर। नहीं, अरे इंग्लिश वर्ड है, सट जाना, सिंपल, टू स्टिक। क्या सर? टू स्टिक, राइट। एडहेसिव मतलब इसमें आता है, ग्लू, एडहेसिव। सर एडेसिव मतलब स्टिकी सर। Yes, so that is the English word ना। जल्दी बताओ, a friction can be increased by, friction can be increased by, सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर। increased. सर मल्टी सेलेक्ट में हाँ ऑल सर, ऑफ वो द भी अबव देखा कौन सर। देता सर? सर Yes, so either increasing the weight of the body or increasing the force applied. Yes or no? सर 3000 पॉइंट्स मिले सर, लेकिन भी 7th प्लेस पे कैसे? सर और मैं 8th में। Next, more friction is felt by train moving around a curved path as compared to, tell me, think about it. सर ये टुक टुक कैसा आवाज है सर? आउट का। सर ये मेरा माउस क्लिकिंग कर। सर बहुत ज्यादा ही टाइम। हाँ, बहुत ज्यादा टाइम है, सही होना चाहिए हाँ सबसे सर, जल्दी। सर स्किप कर दो सर। एक बच्चा बचा हुआ है ना, इसीलिए। 21 स्टूडेंट्स है क्या? इट इज ट्रू ना। सर पोजीशन बिल्कुल भी नहीं हला। सर मैं भी आदित्य बाबा के पीछे ही हूँ सर, 9th पे। ओके, नेक्स्ट, इसमें टाइप करना है, ये गलत होने के चांसेस है। सर इसका आंसर क्या है सर? सर मत बोलो सर। मैंने बताया था, लिखा हुआ भी है सर कितना इजी है नोट्स सर। पे। हाँ सर, इजी है सर। सर बस टाइप कितना फास्ट करते हो उस पर डिपेंड है सर। सर सर मैं बस यस, रेडी ओके, था सर। यस, ओके पूर्वी, करेक्ट। सर मैं अब तो भूल गया सर, मुझे याद। यस अक्षित, करेक्ट। सर मेरा रॉन्ग हो गया। सर ये पैराशूट कौन दबाया सर? पैराशूट। नहीं भी लिखा है सर किसी ने।
सर तो 8 drag- लोगों ने जिसने ड्रैग फोर्स लिखा है वो भी सही है, बट सिर्फ ड्रैग होता है, ड्रैग फोर्स लिखा है सही है, वो भी सही है, डोंट वरी, ठीक है। ड्रैग फोर्स आल्सो करेक्ट। पैराशूट सर 5th प्लेस। फ्लूइड फ्रिक्शन भी तो करेक्ट है ना? हाँ, फ्लूइड फ्रिक्शन भी करेक्ट है, डोंट वरी, ठीक है। सर लेकिन आपने बस एक ही आंसर But डाल दिया सर, mistake- ड्रैग। हाँ, एक ही आंसर डाला था इसीलिए, ये तो गलत हुआ। ठीक है। दिस वन, देयर स्मॉल मेटालिक बॉल्स यूज्ड इन मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इसका नाम बहुत सिंपल बच्चे वाला सर सवाल। बहुत सिंपल है सर, बहुत बार सुना है, सिंपल है नाम। बहुत जगह सर भी आता है। गलत क्लिक हो गया सर। नाम ये कैसे ऐसे गलत क्लिक हो सर गया? चैट में आंसर करने के लिए बोलो ना सर, गलत हो गया तो। नाम नहीं है सर। सर चैट में यस भेजा। कार्तिकेया, आकर्ष क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? क्यों सर, क्या हुआ? कुछ नहीं, देखो तुम आंसर देखो फिर बच जाएगा। बॉल बियरिंग्स ना, मेटालिक रिंग्स नहीं, इट इज बॉल बियरिंग्स। यस और नो? माइनस करें। सर मैं एक सर सर बॉल मेरा बेयरिंग से। फिर भी हाँ सर, हिला नहीं सर सर 5 लोगों का मैंने। रॉन्ग हो गया सर। मेरे आंसर स्ट्रीक 3 की थी सर, फिर भी नहीं हिला। कोई नहीं, बाकी लोग किए ना। यस, सो वृंदा थर्ड, मधुर सेकंड, फर्स्ट इज निकेतन। नहीं सर, मैं 5th में हूँ सिद्धार्थ है। सर, मेरा टाइमिंग बहुत कम था। फोर्थ किशोर, फिफ्थ निकेतन। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट का हो, जल्दी जल्दी। हाँ सर, सर लोड भी कर दिया सर। हाँ, स्पीड है बहुत। सर पिन कोड दिखाओ सर, पिन कोड। सर पिन कोड। पिन कोड ये रहा, ये कहाँ गया? सर ये क्या? सर आप भी बहुत फनी हो सर। 5675937। गाइस, अपना अपना नाम तुम लोग गलत नहीं रखना, सही रखना, ठीक है? ठीक है सर, जैसे आपके आगे। राइट, बिकॉज हम सर लोग मेरा तो daily हमेशा count- एक ही रहता है। हम लोग डेली काउंट खेलते हैं, डेली टेस्ट होता है, ठीक है, बट तुम लोग को भेजते नहीं है हम, है ना? बट पेरेंट्स माइट थिंक ना कि टेस्ट होता ही नहीं है, हाँ सर, सर लेकिन मैं मेरी मम्मी को दिखाता हूँ। तो तुम लोग को अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए ना कि डेली होता है, डेली। हाँ सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, सभी को पता चल जाता है क्या होता है। सर मेरी मम्मी तो मेरे साइड में आके ही बैठती है सर काउंट के टाइम। मेरी मम्मी मुझसे पूछती है सर स्टार्ट कर दो सर। ओके गाइस, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। सर वेट अ सर, मिनट। सर सबका हो गया सर शायद। सर और नहीं, 2 लोग बचे हुए अभी। हाँ सर हाँ सर, 23 पार्ट्स। ओके, वी विल स्टार्ट नाउ। सिद्धार्थ ज्वाइन कर लिया, श्राव्या ज्वाइन कर ली? हाँ, श्राव्या ज्वाइन की। चलो ओके, वी विल स्टार्ट नाउ। युक्ति, सर एक स्टूडेंट बचा है सर। युक्ति बची है शायद। हाँ सर, युक्ति बची। क्या से? Okay, we'll start now. So this is based on types of friction. Okay, this is last Kahoot. This is last Kahoot. ओके सर। Friction that needs to be overcome to move a heavy cart. कौन सा friction है ये? सर होम स्कूल 1 को पढ़ाया है सर, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। आज ही तो पढ़ाया। सर बस उतना ही पढ़ाया था तो सर। पढ़ाया सर एंड में। समझदार है ये लोग, इतने में ही काम चल जाता है इनका। सर Static friction ना? हाँ सर। सर ये रोलिंग फ्रिक्शन किसने लिखा सर? Overcome to move. समझ में आया कि नहीं? Right? कार्ड का व्हील दिखा और रोलिंग फ्रिक्शन दबा दी। English. अगर पूछता friction applied when it is moving, then it is rolling. ठीक है? This one यहाँ पे। सर आप आंसर बोले। सर मैंने गलत दबा दिया छी। हड़बड़ी में गड़बड़ी। This is I just told you this in today's class only. हाँ The answer is false ना? 9 लोग true कैसे किए हैं? सर मैं बोला ना सर। Guys कैसे? Static friction is greater than rolling friction. Rolling friction सबसे कम होता है ना? हाँ है ना? और यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है बताओ? यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? रोलिंग रोलिंग। गलत हो गया सर। अच्छा। नेक्स्ट, सर क्या पिक्चर डाला है? पिक्चर में तो कारपेट नहीं है सर, वो तो कोई और ही है। क्वेश्चन में तो कारपेट पूछा था सर, इमेज में तो कुछ। अरे heavy furniture and suitcases are
with wheels to make the smooth सर movement. ये काउट तो हमने खेला है सर फिजिक्स क्लास में Next, सर next इसीलिए सारे आंसर्स पता है सर और करेक्ट आंसर्स कौन से इस ऑप्शन में है वो भी पता है next. कोई बात नहीं, नेक्स्ट आउट हम बनाएंगे ना, इसीलिए आज से बनाना हुआ था, नेक्स्ट क्लास में वो बनाएंगे, ठीक है? हाँ सर। ओके, दिस वन. सर इसमें बहुत सारे लोगों को गलत हो गया था सर फर्स्ट टाइम सर अभी इन लोग का सही हो जाएगा। ये बट मैंने बहुत गलत ऑप्शन दबा दिया सर ओह गाइस बताओ, तब भी आदर्श हमसे डिबेट कर रहा था, ये तो आंसर दिया हुआ है ना जो हम लोगों ने पूछा था, यस और नो? मेरा गलत हो गया सर। सर मेरा गलत हो गया सर सर मेरा correct है, सर मेरा करेक्ट है सर। सर मैं फर्स्ट से फोर्थ आ गया सर सर आदर्श डिबेट अब मतलब हर टाइम टू टाइम रेगुलरली करता है क्या सर? आज आदर्श को बहुत मिस किया जा रहा है। सिद्धार्थ, ओके सर वी मिस सर सर तो सर मेरे पास का आउट में बहुत गुस्सा है क्यों? सर मैं टाइम से पार ऐसे दबाने सर मैं फर्स्ट से फोर्थ चला गया सर ओके, इंटरनेट खराब हो बिंदु, डोंट वरी, इट्स फाइन, बेसिक समझ में आया ना? सर एक और काउट ओके, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन